تو چلیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ، جہاں پر اجمیر شریف درگاہ کے حوالے سے جہاں ملک بھر میں چرچا ہو رہی ہے، وہیں اجمیر شریف درگاہ میں سید سرور چشتی سیکرٹری انجمن درگاہ خواجہ صاحب اجمیر نے کہا کہ درگاہ کے خلاف ہونے والی سازشوں پر درگاہ شریف سے ہی آواز اٹھنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی تمام درگاہوں کے لوگوں کو یکجا ہو کر اس سازش کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ سلطان الہند نائب النبی عطا رسول آل نبی اولاد علی جگر گوشہ رسول کا آستانہ ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کے ڈسینڈنٹ ہیں، ان کی پروجنی ہے، نائب النبی عطا رسول ہے، یہاں سے اسلام پھیلا ہے۔ مورل رسپانسبلٹی کس کی ہے کہ جب ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کے معاملات اٹھیں تو سب میں پہلے آواز کس کی اٹھنا چاہیے؟ کہاں سے اٹھنا چاہیے؟ تو آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہندوستان کا مسلمان گورنمنٹ، انٹیلیجنس، پولیس، میڈیا اس بات کو سن لے کہ یہ من کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہر طرف درگاہ اور خانقاہ والوں ہندوستان کے تمہاری آوازیں کیوں بند ہیں؟ تمہاری آوازیں کیوں بند ہے؟ بارگاہ غریب نواز میں کہا یہاں مندر ہے اور تم چپ بیٹھے ہو جبکہ یہ کلیدی درگاہ ہے۔ ارے بھائی تمہاری ضرورت نہیں ہے، اربوں چاہنے والے ہیں اور ہم لوگ ہیں جو جان دینے والے ہیں۔ اچھا کبھی ان کی آواز نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے؟ سنو، یہ میمانے بکری ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو سادات کہیں، مزار اپنے بزرگوں کے مزاروں کی ہڈیوں کا سودا کر کے پیسے کمائیں، اور جب بات ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئے تو آپ لوگ خاموش رہیں۔ لعنت ایسے درگاہ اور خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں۔ جموں کشمیر پولیس کانسٹیبل بھرتی امتحان کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوا، جس میں 2.6 لاکھ امیدواروں نے 856 سینٹر پر شرکت کی۔ اس موقع پر سخت سیکیورٹی تدابیر کے تحت امتحان منعقد کیے گئے۔ یہ امتحان 3 مراحل میں منعقد کیے جا رہے ہیں اور باقی مراحل 8 اور 22 دسمبر کو منعقد ہوں گے۔ کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے، تاہم صرف 4200 ہاں جی، ہمیں یہی امید ہے گورنمنٹ سے، جو یہ JK SSB کانسٹیبل کا جو ایگزام ہے اس میں 5.5 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور پوسٹس خالی 4000 ہے، اور میں JND کے گورنمنٹ سے یہی کر رہا ہوں کہ آپ پوسٹس نکالیں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کی کتنی بے روزگاری ہے اور کتنے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ایگزام دینے کے لیے۔ اور میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ان ایمپلائمنٹ پہ تھوڑا زور دیجئے تاکہ یہ ان ایمپلائمنٹ یہاں پہ کم ہو، اور جو کہ بچے ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے کسی اور کاموں میں لگ رہے ہیں، ہمیں وہ چیزیں روکنے چاہیے، جیسے کہ کشمیر میں ڈرگس ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ ان بچوں کے لیے آپ ذرا کوئی ایسی سویدھائیں اور لائے تاکہ بچے ورک میں رہے، تاکہ وہ اپنا فیوچر دیکھ سکتے، اور جو یہاں پہ کشمیر کے لوگوں کے فیوچر ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ اتنا فیوچر نہیں ہے، نہ اتنے اسکوپس ہے۔ تو ہم یہاں کے گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ یہاں پہ لائے اور سکوپس لائے یہاں پہ، تاکہ بچے ورک کر سکتے ہیں۔ اور یہ بے روزگاری جو یہاں پہ بڑھ رہی ہے دن بدن، اور یہاں کی کوالیفیکیشن اگر دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کے پاس بہت کوالیفیکیشن اور سکوپس کم ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں JK کانسٹیبل کے لیے بہت سارے بچے ایگزام دینے کے لیے آئے اور پوسٹس خالی 4000 ہے، اور 5.5 لاکھ بچوں نے فارم بھرا ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہی کہے گے کہ آپ اور جابس دیکھیے تاکہ یہ بچے کچھ کر پائے۔ بے روزگاری ہے کشمیر میں، بے روزگاری بہت ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے کہ 4200 پوسٹس ہیں اور تقریباً فارمز آئے ہیں 5 لاکھ ایٹ لیسٹ، تو اس لیے بے روزگاری ہے، اس لیے ہم نے فارم بھرا ہے، جائیں گے۔ گھر کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو بھی فلفل کرنا ہے، اس لیے امیدیں اچھی ہیں اور اللہ پہ بھروسہ بھی، خود پہ بھی بھروسہ ہے، اور اللہ سے بھی مانگتے ہیں کہ ہماری سلیکشن ہو جائے، جو جتنے بھی فارم بھرے ہیں، جتنے بھی محنت کی ہے وہ سیٹل ہو جائے، اس میں بھرتی ہو جائے۔ مجھے اعجاز احمد ڈار، اولچہ باغ سان تیاری کٔرمٕژ پٔتمہِ 6 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ یُتھُے یِمو گورمٮ۪نٛٹن اَناوُنس کوٚر کہِ أسۍ کَڑو یِم فارم تہٕ اَسہِ کوٚر تَنے پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ پرٛٮ۪پریشن اَمِچ۔ بِذٲتی چھِ ییٚتہِ حظ مطلب
ان ایمپلایمنٹ بیٚیہِ چھِ مےٚ اَتھ منٛز پنٛنِس کنسرن پُلیٖس سٹیشن تمیُک ایس ایچ او وسیٖم گُل تٔمۍ چھُ اَسہِ واریاہ سپورٹ کوٚرمُت کہِ مطلب سُہ چھُ اَسہِ تَتہِ مِلان جُلان اَصٕل گرٛاوُنٛڈَس منٛز سُہ چھِ انسپریشن ہے مجھے. سر कंपटीशन तो बहुत टफ है, लगभग 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं. देखते हैं सर किसकी नसीब में होगा, वो तो आगे पार करेगा. मैं हारवन श्रीनगर से आया हूँ जी. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तैयारियाँ की है. सो यही है कि आज बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत लड़कों ने फॉर्म भरा है, तो इसीलिए आप अल्लाह ताला जिसके मुकद्दर में होगा तो उसको मिलेगा इंशाल्लाह, जिसने अच्छी प्रिपरेशन की होगी. जी हर कोई अपनी अपनी जगह, हर किसी ने अपनी अपनी जगह पे पूरी. डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बेदरनी और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने श्रीनगर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया ताकि जारी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहानात की निगरानी की जा सके. इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि इम्तिहान का इनेकाद साफ और पुरअमन तरीके से किया जाए ताकि उम्मीदवारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना. आप तो देख ही रहे हैं अरेंजमेंट जो है वो, ये जो कैंडिडेट की संख्या है आपने बिल्कुल सही कहा. और मेरे जो हमारे जो प्रोविंस है कश्मीर प्रोविंस में, उसमें 1,13,500 करीब हमारे जो है बच्चे हैं. 398 हमारे सेंटर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस में पूरे जो जगह पे है. इसमें इंतजामात के हिसाब से कि इन्विजिलेटर हो, एक स्पेशल ये किया गया था फ्रिस्किंग पॉइंट पे ही एक स्पेशल सुपरवाइज़र भी इस बार लगाया गया है. एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, ये हमारा जो है मेन उद्देश्य है. और फेयर एग्ज़ाम होना तो हर कोई डिज़र्व भी करता है. और इसी तरीके से हमने जो इंतजामात यहाँ पे किए हैं, जो इनके लिए छोटा जो मोबाइल वगैरह लाने की इजाज़त नहीं थी, तो जो भी अगर बैग वैग लाए तो उनके बाहर यहाँ पे रख दिए गए हैं. मैंने भी अंदर जाके देखा है, बाकी सब व्यवस्था ठीक है. बच्चे अपने मुतमईन होकर सब अपने अपने पेपर को कंसंट्रेट कर रहे हैं. तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि फेयर तरीके से जो है एग्ज़ाम के इंतजामात के लिए सभी लोग फील्ड पे हैं. जैसे आप देख रहे हैं डीसी साहब हैं और उसके साथ बाकी ज़िलों में भी आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में. जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के गांव सलमा कानी डीएच पुरा के रिहायशों ने शिकायत की है कि उन्हें पिछले 2 हफ्तों से पीने का पानी फराहम नहीं किया जा रहा है. गाँव वालों का कहना है कि मुताल्लिका महकमे ने उनकी मुश्किलात पर कोई तवज्जो नहीं दी है. ख्वातीन को पानी लाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है. मकामी अफराद ने हुकूमत से फौरी इक़दामात की अपील की. बखारा बैठस आब न कत खार मे कोठे फट वो क्या करो यम आब त्रोन गत वस्त सान नैतर का आब तो फ्योर वो क्या करो. बशकिंदार क्या मसला छो? बह गई उतरा आबस गई डोल वुच तो मेनिस बथिस क्या गोमुत आब फ्योर ये त्रोश ये त्रायक आब ये त्रावन नालक फिटर हराम खेवन खंजीर खेवन आब गोस आसन मर्जादिम इंसान गई ढोल बथिस वुचु बे क्या गोमुत बथिस बन खाड़न दरिया पे सलाम कनी नागाम तो आब जबरदस्त प्रॉब्लम आब ये नौ लान लगम तथ चालवे कर पुरान लान यह वारियान जायन फटम तथ जायन ब्लाक लगे क्या तम तथ आब पकन सोद की. तो ये पाइपन पे ये सिवल पाइप त्राम तो लोग यख यम गई बिहत. वन कर गुजारिश मेहरबानी कर नौ लान त्रोक सह कर चालू. तो ये 1 किलोमीटर पेवान गसन दूर अत दूर यह गंद आब कल हुंद अत लिफाफ विफाफ डाइपर वाइपर आसान मज यह बन चुन की. अम सत गए बेमार अम सत गए बच्चे बेमार अम सत गए बुजुर्ग बेमार. इसलिए त्रतन नौ लान यह कर चालू मेहरबानी कर मुश्किल ये बुजुर्ग जनान इन पेवान वसन ये सारी नबर गसान ये कहीं ये जनान मड़ी योत पे शीन पे पत कपर वसन ओत पत क्या करें
اس لیے کران گورمنٹس اپیل مہربانی کر نو لون چالو بیٚیہِ یتھ آب بیٚیہِ فیٖڈر یتھ نظر وظر دِوان یِم چھِنہٕ یور چھُنہٕ کانٛہہ اکھ یِوانٕے یتھ چھُ 2 دۄہن روزان آب ہفتس چھُنہٕ روزان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ یہِ کِہِرۍ آب یہِ چھُ خراب آب ییٚمہِ سۭتۍ گٔے ییٚتہِ واریاہ بٮ۪مار یہِ چھُنہٕ گُپن تہِ چھِنہٕ اَسہِ چٮ۪وان یتھ چھُ بدلٕے آبا کینٛہہ اتھ چھُ مُشُک یِوان أسۍ چھِ وۄنۍ کران گورمنٹس اپیل کہِ مہربٲنی کٔرِتھ سون بوٗزتو اَسہِ تھٲیتو یتھ آب یہِ کہِ بُزرگ اکھ چھُ ییٚتٮ۪ن تۄہہِ آسِوٕ یہِ وٕچھمٕژ أمِس لوٚگ دب یَو یہِ چھُنہٕ وۄنۍ بِچٲرۍ ہٮ۪کان تھوٚدُے ؤتھِتھ آبہٕ نٔٹۍ ہٮ۪تھ گٔے یہِ ڈُلہٕ اتھ بٔٹھِس محمد شفیق گنے بہٕ چھُس روزان سلام کَنۍ اَسہِ حظ گٔے وُمُر ییٚمی حالہٕ اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ زانٛہہ تہِ آبُک سیٚزرا ییٚتہِ گوٚو ییٚمہِ پتہٕ تہِ واریاہہِ لٹہِ ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ دٔدۍ ییٚتہِ واریاہ گرٕ تہٕ بہٕ سا ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ آب سیر تہِ اوس اَتٮ۪تھ برونٛٹھ کَنۍ یا مطلب گرس منٛز تہٕ جناب بلی پارُس تہِ حظ گوٚو ییٚتہِ آبہٕ نٔٹِس پٮ۪ٹھ بوٚڑ بار مسلہٕ یِہُس تہِ چھُ کینٛہہ چھِ مطلب بُزرگ اِنسان یِمن زن نہٕ مطلب نوٚش چھُ پانس سۭتۍ کوٗر چھِ پانس سۭتۍ تہٕ تِم کتہِ انن آبہٕ نوٚٹ یَوٕ چھِ گٔمٕژ یہِ بُزرگ موج دٔریاوس پٮ۪ٹھ آبہٕ نٔٹِس أمِس چھُ لوٚگمُت دب تہٕ أمِس چھُ بُتھٕے تُہۍ دِیِو نظر أمِس بٕتھِس کُنتھ أمِس کیٛاہ چھُ گوٚمُت یِتھی چھِ ییٚتہِ واریاہ مسلہٕ مطلب اَسہِ نہ حظ چھُ آبٕے یہِ وٕچھوٕ تۄہہِ پانہٕ تہِ مطلب موقعس پٮ۪ٹھٕے چھا ییٚتہِ اَسہِ گوٚژھ ونٛدس وۄنۍ آب روزُن یتھ یہِ نوٚو نلکہٕ سٔروِس ترٲوٕکھ یہِ تہِ اتھ تہِ چھُنہٕ کُنہِ آبٕے یہِ گٔژھ گژھٕنۍ چالو ییٚلہِ باقین گامن منٛز اورٕ یورٕ ییٚلہِ چالو گٔے ییٚتہِ کیازِ یِتھٕے پٲٹھۍ اَسہِ چھُ مطلب موٚزوٗرۍ مشگت کٔرِتھ بنٲوۍ مکان فِٹنگ کٔرمٕژ سۄ چھِ وۄنۍ یِتھٕے سۄ چھِ کھَے کھیٚمٕژ ییٚلہِ نہٕ تتھ آبٕے چھُ I am from Salamkani, Nagaland. Here we have the tremendous problem of drinking water, and we are facing so many problems. We don't have available any source of water, particularly drinking water. And here is only one source of drinking water, that is river, which is flowing between two villages like Noorabad and Salamkani. And if you see that river, that is almost 1 kilometer away from here, from this village. So it is very difficult to carry a bucket of water from that river to here. And now we are humbly request to concerned administration to please kindly attention. बोंदुलगाम के रहायशों ने पीडीडी महकमा अनंतनाग के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि गांव को रहू अनंतनाग के पिछले पावर फीडर से जोड़ा जाए। उनका कहना था कि महकमे के अहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर गांव का फीडर तब्दील किया, जिससे बिजली की फरहमी मुतासिर हुई। रहायशों ने कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि अगर उनका मुतालबा पूरा ना किया गया तो वो मजीद एहतजाज करेंगे। भट्ट जनाब सदर जामिया मस्जिद बनदगाम मसल गो पावर चलान अशशपोरा रिसिविंग स्टेशन पे अत फीडर 4 फीडर नेरान 4 फीडरन मज फीडर उस जन मीटर्ड फीडर बाकी 3 फीडर तम नॉन मीटर फीडर अत मज गोडनथ बंदलगाम अशाजीपोरा तम पे ओतरुस नजीगुन डबरुन तो मोमिन आबाद तम सात वजूद यह 2004 पे गोमुत यह फीडर स्टार्ट मोमिन आबाद वजूद कुन सात तम सात पत आय तमो जमीन अखा बस्ती बने तत बस्ती मेन फीडर बंदलगाम अशाजीपोरा और डबरुना अचानकन गो ओत्र दोयम दो त्रेम दो चूरम दो अचानकन आव उस्तान डिक्टेटर तम न्यू पावर डिस्कनेक्ट कर मीटर्ड इलाक पावर तुलन सह त्रोन नॉन मीटर एरियास पे वनकस चलान नॉन मीटर एरियास पे ये जन टोटल पावर रोजान यह वाटर सप्लाई यस गामस गस एरियास गसन सह गई सफर वाटर सप्लाई ती गई सफर कंसर्न स्टाफ AEE कह तमो गलत इन्फॉर्मेशन दिसम यह सब्जी नॉन मीटर एरिया वाइल एज ये वनकस 90% मीटर एरिया
यथ मज क्या खराब मीटर गमी तम 5% टोटल तम फ्लैट रेटस मज तम 2,500 पे 3,000 रुपये फीस भरान लिहाजा गुजारिश करान थ्रू गुलिस्तान न्यूज़ बड़ जबरदस्त मशहूर गुलिस्तान न्यूज़ वुच हमेशा फी कुछ जाए योत गई ये गई तमाम सारी मसल हल टीवन पे वुचान जबरदस्त मशहूर गुलिस्तान न्यूज़ एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश करान जन अशपर पे फीडर पावर तम लगन मुलाजिम एजत सान बे वापस सह पावर यस अवामी मांग 4 दोहन जद्दोजहद कर इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद ेर तामत लागन अशपर पे बे पावर मीटर्ड एरिया यम जन ये मीटर लगित जनाब बाज़ाब्ते फीस भरान कि जन ये 20 वरी ब्रो फीडर चलान यमो मिसलेड कोर्मुत MD यह हसा नॉन मीटर्ड एरिया ये जन ये मीटर्ड एरिया ग्राउंड सिचुएशन 90% मीटर लगे। देखो ये सही बात है कि ये मैं कल भी एग्जाम जो है हमारे यहाँ पे PDD के और जो ये क्या कह रहे हैं कि MD है मसरत साहब उनके साथ भी बात की कि आज 20 या 30 साल के बाद वहाँ पे आपने फीडर चेंज कर लिया। आप कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से वहाँ पे किया गया था, तो अगर गलत तरीके पर किया गया था आज ही क्यों, ये गलत बात है। नो डाउट कि वहाँ पे वो लोग रहते हैं जो XDC है या बड़े आदमी है, तो गरीब लोगों को वहाँ पे तरसाया गया। आज पावर की वजह से कर्टीलमेंट इतनी ज़्यादा है तो वो बेचारे सर्वाइव नहीं कर। CEO गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी रियाज अहमद ने गुलमर्ग में इजलास की सदारत की, जिसमें बर्फबारी की सफाई, सड़कों की राब्ताकारी, बिजली और पानी की फरहमी के हवाले से बातचीत की गई। इजलास में बर्फबारी की सफाई के लिए इजाफी मशीनरीज की तैनाती, बिजली और पानी की फरहमी के लिए इकदाम और सेहत की सहूलियतों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। गुलमर्ग में तमाम होटलों के मौसम सरमा के लिए तैयारियों की तस्दीक भी की गई। ट्रैफिक के इंतजाम और सयाहों के लिए बर वक्त अपडेट्स देने की हिदायत भी जारी की गई। इजलास में मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। करने का यही मकसद था कि ओवरऑल में जो विंटर प्रिपेयर्डनेस हमारी है गुलमर्ग में, अब विंटर रिलेटेड स्पोर्ट्स में और आपको ये मालूम ही है कि विंटर में यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, और उसको टैकल करने के लिए हमने आज डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली। इसमें हमारा सबसे पहले जो पॉइंट था वो था कि जो बाउल में यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है उसके इवज़ में हम कौन से स्टेप्स उठाएं और किस तरह इसको मॉनिटर करें। इसके अलावा जो भी आपने देखा होगा कि जो टंगमर्ग में हमारा ट्रैफिक जैम हो जाता था उसमें म्यूनसिपलिटी ने 200 गाड़ियों के लिए जो पार्किंग है उसको अवेलेबल रखा हुआ है, और दैट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द व्हीकल्स टू बोर्ड देयर व्हीकल्स देयर। उसके अलावा जो बाबर इशू और टंगमर्ग में जो हमारा एंट्री पॉइंट्स है उस पे ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे जहाँ पे ये इलीगल जो ये इलीगल ये राइड्स या जो वो इलीगल एक्टिविटीज इंडल्ज होते हैं उसमें उनको स्टॉप करके उसमें हमने टीम एक तश्कील दी है जो इसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, और इसमें कोई भी कंप्लेंट ऐसी आए कि जहाँ पे टूरिस्ट को हैरस किया जाता है यहाँ पे उसको ओवरचार्ज किया जाता है उसमें वो रोक ले। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का इशू काफ़ी देरीना ये इशू रहा है, उसमें लाइट्स का मेजर लाइट्स जो है वो डिफेक्ट है, उसमें हमने PDD को ऑलरेडी ऑथराइजेशन दी है। तो नेक्स्ट वीक बाय दिस 10th of December उन्होंने एश्योर किया है कि दैट दिस विल बी मेड फंक्शनल। उसके अलावा जो गंडोला के इन एंड अराउंड जो काफ़ी रश रहता है वो स्की स्लोप्स हमारे फुली ऑक्यूपाई होते हैं, उसमें वॉशरूम का इशू आता है और गाड़ियों का ट्रैफिक जैम हो जाता है, उसमें हमने बैरिक्स लगा के उसमें हम नो पार्किंग जोन वो डिक्लेयर किया हुआ है। और ATVs जहाँ तक विंटर में या स्लेज की जो मूवमेंट होगी दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट गंडोला टुवर्ड्स जो हमारा पोटैटो फार्म का बाउल। जिला बडगाम के इलाके खान साहिब मुजपथरी के लोगों ने शिकायत की कि रूरल डिपार्टमेंट ने आज तक उनके इलाके में बैतुल खला फराहम नहीं किए। मकामी लोगों का कहना है कि दीगर इलाकों में ये सहूलियात दी गई है लेकिन उनके इलाके में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तवज्जो देने की दरख्वास्त की है। भट्ट
असली दिख ज़ात क्या दलील दपान क्या आज पगह बनाओ बनाओ तो कहें ब्लॉकस पे गई नहीं VLW आयो तो बस तमें वन अच्छा पता आव अहन अपन टाइप पाने मे पाच वज लग मे टाट वाट तमें ब्लॉक वाले दपान बनाओ बनाओ तो इन कहें गसा कह दिन बन तम टच वज यस बाथरूम आय सान न कुन गान न कहीं। मेरा नाम तो यास्मीन है। हमको नहीं मिला, हमको किसी ने नहीं दिया। यहाँ तो बर्फ गिरती है, बच्चे होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे बच्चा निकलता है फिर जाता है बहर, बर्फ होती है बहुत बार, हमको किसी ने नहीं दिया पका। गए थे मगर दिया नहीं है, बोलते हैं देंगे देंगे, कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं देंगे। सब कोई देते, आई वाई शार्ट देते, यहाँ गरीब है, सब कोई गरीब है, किसी को नहीं देता है, किसी बारामूला के शेरीगंज मोहल्ला और दीगर इलाकों में फायर सर्विस स्टेशन की कमी एक संगीन मसला बन चुका है, जो मकामी लोगों की हिफाजत को खतरे में डाल रहा है। मकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए और इसी पर पेश है इरशाद भट्ट की खास रिपोर्ट। बारामूला के शीरी इलाके की बात करें, जहाँ पे आज मुकामी लोगों की तरफ से एक बड़ा एहतजाज किया गया, जिसमें ये कहा गया बाकायदा तौर पर इस इलाके की बात करें या दीगर इलाकों की बात करें, यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन नहीं है। और ये बात काबिल ज़िक्र है, इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स पेश आए, उस वक़्त मुकामी लोगों को काफ़ी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे कई लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं, और अगरचे फायर सर्विस स्टेशन के हवाले से बात करें, कब से ये आप लोगों को मुश्किलात हैं? क्या अभी तक आप लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ LG इंतज़ामिया, चाहे हम इस वक्त जो हुकूमत है, क्या उनके साथ कोई बात चली इस हवाले से? इरशाद साहब, आप गवाह है, इससे पहले भी लगभग 2-3 साल पहले आपने इंटरव्यू किया था फायर सर्विस के बारे में। उस वक्त भी हमने डिमांड की बैक टू विलेज में, लगभग 3 बार बैक टू विलेज हो गया है। उसमें तीनों बार हमने ये गुजारिश की कि हमारा फायर सर्विस जो है वो हमें होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जिस वक्त भी कोई इंसिडेंट होता है, जहाँ तक मकान ख़त्म नहीं, पूरा जल नहीं जाता है, फिर फायर सर्विस में। आज आपको पता है रोडों के बारे में कितना जाम होता है रोडों में। इस वक्त फायर सर्विस होना शहरी में ज़रूरी लाजमी होना चाहिए। हमने इससे पहले भी MLA साहब से हमने गुजारिश की यहाँ फायर सर्विस होना चाहिए। उसने बोला, मैंने उसके कागज़ बनाए हैं, मैं भी गया तहसीलदार के साथ DC ऑफिस, DC साहब ने उधर फाइल मुझे दिखाई, आपका फायर सर्विस तैयार है। ये कब से, ये परेशानी कब से आप लोगों? लगभग 2002 से है, 2002 से है। तब तक इतने गाँव में इतने मकान नहीं होते थे या इतना बाजार नहीं होता था। 2002 से दुकानें भी बढ़ गए, मकान भी बढ़ गए, गाँव भी बढ़ गए, इसलिए हम फायर सर्विस को होना बहुत ज़रूरी समझता है। हम लोग शीरी इलाके के साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें, कुल आबादी कितने? लगभग आबादी 1 लाख के करीब आबादी होगी। ये नारवाव जो है, शीरी नारवाव, ये लगभग 28 गाँवों पर है। 28 गाँव पर यह है शेरी, इसको पूरा इलाका नारवाव बोलते हैं हम, शेरी से नाम से मशहूर है। लेकिन इनको हमने बार बार डिमांड की, हमने कई दफ़ा यहाँ एहतजाज भी किया है। यहाँ दुकानें जल गई, उस वक्त भी आप मौजूद थे, उस वक्त हमने दुकानें बंद की, तहसीलदार साहब आ गया, उसको हमने बोला, उसने लिया हमको उधर से बारामूला DC ऑफिस के DC साहब के साथ बात की। उस वक्त उसने बोला हम दे देंगे, 10-20 दिन में दे देंगे, लेकिन आज तक नहीं आ गई। अगर हम फायर सर्विस स्टेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए इस शीरी इलाके के साथ साथ दीगर इलाकों में फायर सर्विस स्टेशन नहीं है, जिस वक्त यहाँ पे खुदा न खास कोई इंसिडेंट पेश आता है, कितने सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है और कहाँ से उस वक्त फायर सर्विस अमला आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ दून, मैं जनरल सेक्रेटरी शेरी मार्केट में हूँ। सबसे पहले ये जो फायर सर्विस का मसला है, तकरीबन 2010 से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें फायर सर्विस दे दो, मगर गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे तकरीबन 10 सालों से हुकूमत नहीं थी, अब हम अपनी हुकूमत है, अवामी हुकूमत है। हम आपके माध्यम से यहाँ के LG मनोज सिन्हा साहब और हमारे UT के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और DDC चेयरपर्सन से हम मोतबाना अपील करते हैं, हमें फायर सर्विस दे दो, क्योंकि ये जो गांव है ये काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, ये गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 28 गाँव हैं। उनके लिए आप देखिए, रिसेंटली एक बार खुशबाग में जो इंसिडेंट हुआ, तकरीबन 40 मकान खाकस्तर हो गए। तो ये
अगर खुदा ना खास्ता डांगरपुरा मलपुरा नमलन में आग की होलनाक वारदात हुई, उस समय खुदा के सिवा उनको कोई नहीं है, क्योंकि 2 घंटा या 3 घंटा लगता है बारामूला से मलपुरा पहुँचने में। क्या चाहते हैं आप लोग आज यहाँ पे जमा हो चुके हैं सारे लोग, क्या डिमांड रहेगी आपकी तरफ से? क्या इससे पहले कहाँ पे आप गए, वहाँ से जवाब क्या मिला, उस हवाले से आप बताएं। देखिए जितने भी यहाँ पे बैक टू विलेज हुए, क्यों आपने भी वहाँ पे ये किया है, तो हमने आपके माध्यम से हर बार ये कहा कि नारवा में एक फायर सर्विस होनी चाहिए। उससे पहले कुछ ये जो इसका निकला है, तो जब हमने यहाँ पे मीटिंग की। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।